پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے مبارک قدوس اور جلالی نام میں سامعین اور ناظرین، آج شب یہ خاکسار خادم یک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس اسکائپ آئی ڈی پر بھی اور ان فیس بک کے کئی پیجز پر اور یوٹیوب چینل اور ایون واٹس ایپ گروپ میں بھی ہماری ان بائبل سٹڈیز کو سنتے، سیکھتے، برکت پاتے اور دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ کی اس روحانی بھوک اور اس روحانی پیاس کے لیے میں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتا ہوں، اور میں بھی اکثر یہی کہتا ہوں کہ میں بھی لالچی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ خداوند کے کلام کے خزانوں کا، دنیاوی دھن دولت کا نہیں، اور خدا نہ کرے کہ میں لالچی ہوں، صرف خدا کے کلام کی اس عظیم خزانے کا لالچی ہوں، خدا کی قربت اور نزدیکی میں رہنے کا اور خداوند کے ساتھ محو گفتگو ہونے کا، اور خدا کرے کہ یہ روحانی لالچ ہم سبوں کا ہو تاکہ ہم خداوند کے عرفان میں دن بدن بڑھتے اور ترقی پاتے چلے جائیں۔ ہم ان دنوں میں اور خاص کر آج کے دن یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ پر مل کر سیکھ رہے ہیں۔ 21 باب میں ہیں اور ہم نے 14 آیت تک گزرے ہفتے تک غور کیا ہے۔ میری ویب سائٹ پر جا کر مکاشفہ کی کتاب میں گزری تمام سٹڈیز کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے مکاشفہ کی کتاب کی ہوئی ہے۔ آج آپ کی توجہ میں 15، 16 اور 17 آیت کی طرف، ان آیات کی طرف لاؤں گا۔ ریزن یہ ہے کہ ہم اس بڑے شہر یروشلم، نئے شہر یروشلم کہ آسمان پر سے بزریہ یوحنا جو وہ نظارہ کرتے ہیں رویا میں، اس شہر کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ ایسا سجا تھا کہ جیسے دلہن نے اپنے دلہا کے لیے سنگار کیا ہو، اپنے آپ کو سجایا ہوا ہو۔ اس کے رونق اور روشنی، اس کی دیواروں اور شہر پناہ اور اس کے پھاٹکوں اور 12 قبائل اور 12 شاگردوں سے متعلق ہم نے ان آیات میں ماضی میں دیکھا ہے، اور آج میں اس باب کی یعنی 21 کی 15، 16 اور 17 ان 3 آیات کو تلاوت کروں گا، اور چونکہ وہ جو شہر یروشلم ہے، یعنی نیا شہر یروشلم جو اترنے کو ہے، اس سے متعلق ایک بات بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کی رونق سے متعلق ہم نے غور کیا، آج بھی کریں گے، اور خداوند نے چاہا تو آئندہ بھی اس پورے باب میں اور 22 باب میں بھی۔ جب خدا یوحنا کی معرفت اس نئے شہر یروشلم
की रौनक, खूबसूरती और हुस्न की बात करते हैं तो ये इसलिए नहीं कि वो इंसान को मुतासर करें, यानी खुदा इंसान को मुतासर करे या इंसान की तवज्जो को गिरफ्त करे। नो एंड नेवर। क्यों? क्योंकि दूसरों को मुतासर करना और दूसरों की तवज्जो को गिरफ्त करना यह बशर की नेचर में शामिल है। हम अपनी तालीम के जरिया, अपने हुस्न के जरिया, अपनी आवाज के जरिया, अपनी रूहानियत के जरिया, दुआ या जिंदगी के एतबार से, कलाम के जानने के एतबार से, अच्छे वाज करने के एतबार से, शायद बाइबल स्टडीज के एतबार से, खुदावंद के लिए अच्छे गायक होने के एतबार से, या शायद अपने टाइटल्स वाइटल्स, समझ रहे हैं ना क्या मतलब है टाइटल्स वाइटल्स, के एतबार से उनको अपने नाम के आगे पीछे लगाकर शायद दूसरे लोगों को मुतासर करें और उनकी तवज्जो को गिरफ्त करें कि मैं भी कोई शय हूं। लेकिन खुदा को किसी को मुतासर करने की जरूरत नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि खुदा की यह दिली तमन्ना है कि कोई भी बशर इस दुनिया में किसी रंगो, नस्ल और मजहब का हलाक ना हो, बल्कि उसकी नौबत तौबा तक पहुंचे और वो उस नए शहर यरूशलेम का वारिस हो। लेकिन इस खूबसूरत शहर जिसका बयान इवन हम सोच भी नहीं सकते, इस कदर अजीम, आलीशान और खूबसूरत है, जो इसलिए नहीं कि खुदा इंसान को मुतासर करे, नहीं, वो किसी को मुतासर नहीं करता, सबसे मोहब्बत करता है और चाहता है लोग खुदा की तरफ रुजू लाएं। लेकिन आप में से वो जो इस वक्त फेसबुक पर हमारी इस बाइबल स्टडी में शरीक है, आप देखते होंगे कि मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड लगी है। यूं लगता है कि जैसे सोने का ये घर है, और बाय द वे ये मेरा घर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इमेज लगाई है अपने पीछे इंटरनेट से लेकर। बहुत खूबसूरत है ना, गोल्ड की बनी हुई नजर आती है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, यह मेरा घर नहीं है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और ना ही मुझे इस धरती पर सोने के घरों की जरूरत है। खुदा ने मुझे शहर कराची में भी और इवन यहां जहां पर इस वक्त मैं हूं रहने के लिए जगह दी है, और हर एक पहलू के एतबार से उसने मुझे नवाजा है ताकि मैं इस इंजील के पैगाम को आप तक पहुंचाने वाला हो सकूं। लेकिन याद रखिए, खुदा ने आज तक मुझे हर तरह की बरकत से नवाजा है, और मुझे इससे बढ़कर और कुछ जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा मेरी जरूरत को जानता है। मैं उसका काम करता चला जाऊंगा, मेरी जरूरियात का ठेका उसने उठाया हुआ है और वो उनको मुहैया करेगा। कभी मुझे हाथ फैलाते हुए नहीं देखेंगे, बस सिर्फ खुदा के हुजूर, बशर के सामने नहीं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में मुझे मालो दौलत और
महलों माड़ियों की जरूरत नहीं है। यह मेरा घर नहीं और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। लेकिन एक बात बताऊं कि ईमान के एतबार से अपने मुस्तकबल करीब में मैं इतने खूबसूरत आलीशान शानदार पुररौनक महल की इंतजार करता हूं, जिसको बनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 14 की पहली चंद आयात में गए और तैयार कर रहे हैं। वो शहर यरूशलेम जिसमें मैं हूंगा, खुदा की कुर्बत और नजदीकी में बस उसकी हम्दो स्ताइश के लिए मैं महव और मसरूर हूंगा। मैं उस सोने के खूबसूरत तरीन शहर और महलों की इंतजार करता हूं। यह सिर्फ मेरे लिए एक अलामत है जो मेरे बैकग्राउंड में लगी हुई है। अब आपकी तवज्जो इन आयात की तरफ। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था, और वो शहर चौकोर वाकया हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। ये 3 आयात उस शहर यरूशलेम की पैमाइश से मुताल्लिक है, और इसलिए मैंने इन तीनों आयात को आपकी खिदमत में तलावत कर दिया है, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलती रहे तो यह ज्यादा मौजू होगा कि हम बेहतर तरीका से इन आयात को समझ पाएं और इस पैमाइश से मुताल्लिक भी समझ पाएं। यह इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है। मुकद्दस यूहन्ना यूं फरमाते हैं कि जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर, नंबर 1 शहर, और नंबर 2 दरवाजों को, उस शहर के जो दरवाजे थे फाटक उनको, और नंबर 3 उस शहर की शहर पनाह। किस किस को जी? शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला था मेजरमेंट के लिए, जिसको हम आज इंची टेप कह सकते हैं, या जिसको हम फुट्टा या रूलर कहते हैं, उसकी बात हो रही है। लेकिन पैमाइश का वो आला है, लेकिन यहां पर बात कुछ और है। एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। जरा इस बात पर थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे जानने और समझने के लिए बहुत अहम तरीन बातें हैं। याद कीजिए कि जिस जमाने में यह मुकाशफा की किताब लिखी गई है, उस वक्त
जो शायद मेरे बचपन में गज थे वो यूहन्ना के वक्त नहीं थे। इवन आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी गज की बाबत नहीं जानते, वो मीटर्स के बारे में जानते हैं। सेर या किलो या टन के बारे में या छटांक और पाव के बारे में, तोला माशा के बारे में या रती के बारे में वो नहीं जानते। वो इस नई जनरेशन में जो नए पैमाने हैं, उनके नए नाम हैं, उनकी बाबत वो जानते हैं। गज जब मैं छोटा था, बचपन में, इवन हाई स्कूल तक मैंने गज के बारे में देखा और जाना भी। लेकिन एक बात जो यहां पर मैं कहता चलूं वो ये है कि जो गज होता था वो 3 फुट का होता था। 3 फुट का एक गज होता था। यहां पर जो आला है मापने का, वो गज के जमाने से कहीं ज्यादा पुरानी बात है। उस वक्त गज नहीं थे। लेकिन एक बात जानने के लिए है कि उस वक्त एक सरकंडा रखा जाता था पैमाइश के लिए। और जब मैं सरकंडा कहता हूं तो आमतौर पर पानियों के पास, झीलों के किनारे, दरियाओं या नदियों के किनारे एक पतली लंबी सी घास होती है, ऊंची। और जब मैं छोटा था तो उस वक्त इसको हम कलम बनाया करते थे तख्ती पर लिखने के लिए, और इवन कॉपी पर भी गुड़ की स्याही बनाकर। आप जो नई जनरेशन है आप कहेंगे जी हां, ऐसा ही था। और ये जो उस वक्त इसको नड़ी की कलम कहते थे। हम बकायदा चाकू से उसको तराशा करते थे और लिखा करते थे, और हमारी लिखाइयां भी उस वक्त अच्छी होती थी जब तक बॉल पॉइंट नहीं आया। जब तक हम तख्तियों पर लिखते थे, वाह खुशखती की क्या बात है, लेकिन मां बाद काम खराब हो गया। एनीहाउ, वो जो नदियों और दरियाओं और झीलों के किनारे पतली लंबी ऊंची घास उगती थी, वो कई कई फुट पर भी मबनी घास होती थी। उसको आमतौर पर सरकंडा के नाम से याद किया जाता था। वो हल्का होता था और बिल्कुल सीधा भी होता था। पैमाइश के लिए वो एक अच्छा आला था जिसको लोग यूज करते थे। लेकिन आमतौर पर पैमाइश के लिए जिस सरकंडे को वो इस्तेमाल करते थे, उसका यानी उसकी पैमाइश 10 फुट होती थी। कुछ जगहों पर 6 फुट भी है, लेकिन आमतौर पर 10 फुट उसकी पैमाइश हुआ करती थी। जब हम हिजकियल नबी का सहीफा पढ़ते हैं 40 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर 42 बाब की 20 आयत तक, 40, 41 और 42, इन 3 अबवाब में हैकल की पैमाइश की बाबत जब हम देखते हैं, बात करूंगा कि कौन सी हैकल की बात हो रही है, तो उस वक्त 6 फुट का ये एक सरकंडा इस्तेमाल होता था। और आज के दौर में ना तो वो 10 फुट वाला सरकंडा इस्तेमाल होता है और ना ही
गज इस्तेमाल होता है। इवन वो जो ब्रिटिश दौर के या अमेरिकन लोग हैं, उनके भी शायद म्यूजियम्स में ये गज मिले। आज स्टडी के दौरान एक किताब में पढ़ रहा था और उसमें यह था कि जो ब्रिटिश म्यूजियम है उसमें इस तरह का एक तवील बड़ा गज मौजूद है जो सिर्फ पैमाइश के लिए रखा है, ताकि पता हो कि इतने फुट की इतनी चीज होती थी और मौजूदा मेजरमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगली बात, मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि उस शहर के दरवाजों और उसकी शहर पनाह के मापने के लिए उसके पास सोने का गज एक पैमाना था। जब मैं सोने के गज की बात करता हूं तो सोना इंतहाई कीमती तरीन धात है। लेकिन एक बात जो यहां पर गौर तलब है, इस पैमाइश का ताल्लुक और सोने का गज से इलाही माप, डिवाइन मेजरमेंट की तरफ इशारा है। यानी खुदा बजाते खुद उस नए शहर यरूशलेम की पैमाइश की जब बात करते हैं बजरिया यूहन्ना, तो वो बताते हैं कि वो कितना वसीओ अरीज शहर यरूशलेम होगा। जब इलाही मेजरमेंट की बात हो रही है तो इससे मराद वो लोग जो मपे तोले हैं ना, वो ही उस शहर में दाखिल होंगे जिनके पाकीज़गी का मयार आला है, नजात का पैमाना भरा हुआ है, रास्तबाजी उनका ओढ़ना बछूना है, सदाकत और सच्चाई उनका उठना बैठना है। ये इलाही पैमाइश या पैमाना या मेजरमेंट इस बात की तरफ इशारा है कि उस नए शहरों यरूशलेम में वही लोग होंगे जो खुदा के मयार के मुताबिक होंगे। और हर शख्स आज की दुनिया में मयारी चीजों को पसंद करता है, 2 नंबर चीजों को नहीं। लेकिन काश के आज का इंसान और इवन मसीही इस बात को समझ जाए कि अगर मैं 2 नंबर चीजों को पसंद नहीं करता, मयारी चीजों को पसंद करता हूं, तो रब 2 नंबर को तो नहीं कबूल करेगा। आए हमारी जिंदगी में हर वो बात जो 2 नंबरी से ताल्लुक रखती है, दिखावे और रियाकारी और मुनाफिकत से बाज आ जाएं, तौबा करें और अपने आप को आंसुओं के साथ झुकते हुए फिर खुदावंद के हाथों में दे दें, क्योंकि यही वो मुझसे और आप से तवक्के करते हैं। जब मैं मुकाशफा की किताब 11 बाब और उसकी पहली आयत को देखता हूं, तलावत करूंगा। यहां लिखा है, और मुझे आसा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नापो। इबादत करने वालों को भी नाप। अभी यह बात और क्लियर हो गई होगी।
کہ यहां पर इबादत करने वालों के मापने से क्या मुराद है, वही जो नविश्ताए दीवार नबूकत नजर को नजर आया था। मिने मिने तकीलो फरसीन, तू तोला गया और कम निकला है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं वो ये है कि यहां इस 11 बाब की पहली आयत में जो बात की गई है कि मुझे असा की मानिंद नापने के लिए एक लकड़ी दी गई और उसने कहा कि उठ उस मकदस को, खुदा के मकदस को और कुर्बान गाह को माप, खुदा के मकदस को। हिजकियल 40, 41, 42 में भी मकदस के मापने की बात हो रही है। मुकाशफा 11 की 1 में भी मकदस के मापने की बात हो रही है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जो 11 की 1 में है उसकी बाबत उलमा यह कहते हैं कि मुखालिफ मसीह वो हैकल जो बनवाएगा इस्राइल और बाकी कौमों को मिलाने के लिए, वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज और समझौता करवाने के लिए। यह उसकी तरफ इशारा है। और हिजकियल में उस मकदस की तरफ इशारा है जो 1000 साला बादशाही वाला मकदस होगा। यह उसकी तरफ इशारा है। और यहां जब हम तलावत करते हैं आज के इस टेक्स्ट के मुताबिक 21 की 15, 16, 17 में, तो यह नए यरूशलेम वाला मकदस है। उसकी पैमाइश हो रही है और उसकी बाबत बात की जा रही है। अब 16 आयत में लिखा है, और वो शहर चौकोर वाकया हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। दौरान स्टडी मुझे एक बात याद आ रही थी कोड वर्ड्स में, और वो ये है कि मेरे माजी के बारे में आप में से अक्सर जानते हैं मैं कौन था और क्या था, और जो कुछ था उस हिसाब के एतबार से बात कर रहा हूं कि जितने भी आज इस दुनिया में मेरी तरह ही थे और आज खुदा करे हो जाएं, लेकिन है नहीं मेरी तरह, क्योंकि खुदावन ने मुझे तारीकी से निकाल कर नूर और उजाले में आने के लिए चुन लिया। काश के वो भी चुने जाए। लेकिन कहने का मतलब ये, आप जानते हैं कि उनके लिए भी एक बड़ा अहम तरीन मुकाम है। इशारतन बात कर रहा हूं। और यहां जो पैमाइश का जिक्र है ना, आयत 16 में चौकोर होने के एतबार से, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, सब बराबर बराबर, क्यूब की तरह या मुकाब की तरह, एक डिब्बे की तरह। समझ रहे हैं? यह उसकी तरफ इशारा है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस किताब को बाद में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। उन्होंने अपने कई तरह के ख्यालात को बिल्डअप किया। लोग उनके पीछे भी चले और चल रहे भी हैं। लेकिन कंसेप्ट और ख्याल मोस्टली तौरात, नबियों के सहाइफ
और इंजील मुकद्दस से लिया गया। काश के मैं गिन गिन के बताऊं कि क्या क्या यहां से लिया गया। ये बड़ी गौर तलब बातें हैं। हाउएवर, उस नए शहर यरूशलेम की बाबत यहां पर यही बात हमें नजर आती है कि वो चौकोर टाइप होगा, और इसके साथ साथ जो यहां लिखा है ना 16वीं आयत में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 44 हाथ थी। जब मैं इस आयत को देख रहा था तो एक बात यह नजर आ रही थी कि ये जो 12,000 फरलांग है, मेरे बचपन में ये था पैमाना, ये तकरीबन 1500 किलोमीटर नहीं, मील है। आप यूं कह सकते हैं, आप में से वो जो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं, कि ये मामूली पैमाइश नहीं है। कराची से लेकर पेशावर तक का जो रकबा है, आप यूं कह सकते हैं कि तकरीबन इतने 100, बल्कि वो तो तकरीबन 1500-1700 किलोमीटर पर मबनी है, क्योंकि 1500 के करीब 1600 के करीब तो इस्लामाबाद है कराची से। और आप अंदाजा कर लें कि ये कितना है, 1500 मील, इट्स टू मच। और इवन किसी ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और साथ ही ईरान को भी साथ मिलाया जाए तो ये इतना बड़ा रकबा है, ये मामूली नहीं है। कराची से पेशावर शायद सिर्फ 1000 मील के बराबर है। गौर तलब बात है। और जब हम आयत 17 को देखते हैं, और उसने उसकी शहर पनाह को, इसके बारे में हमने देखा कि शहर पनाह से क्या मुराद है, दीवारों की बाबत हो रही है, उसको मापा तो आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ था। हमने इस आयत को यहां पर देखा है। इससे मुराद तकरीबन 200 फुट के करीब है जो यहां हम देखते हैं। शहर पनाह की तामीर के बारे में तो हम बाद में देखेंगे कि वो कैसे कैसे बना, किस किस से बना, लेकिन आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकला। यह शहर पनाह से मुताल्लिक बात हो रही है, तकरीबन 200 फुट। और कई लोग उलमा ये ख्याल करते हैं कि यह शहर पनाह की जो दीवार थी, यह 200 फुट ऊंची, 200 फुट चौड़ी और इसी तरह लंबाई से मुताल्लिक भी बात करते हैं। इन 3 आयात में जो लुब्बे लबाब है मेरे लिए और आपके लिए वो ये कि इस शहर पनाह में और शहर मुकद्दस में वही लोग होंगे जिनके जामे उस बर्रे के लहू से धुले हुए हैं, और वही लोग होंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनाया हुआ है, और वही लोग होंगे जो नजात का जामा पहने हैं। पाकीज़गी और रास्तबाजी का उनका मयार आला और उत्तम है। और फिर उसके बाद हम इस हकीकत को देखते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक कि वो इतनी बड़ी और वसी जगह और मकाम होगा
کہ قوमों और उम्मतों से, कबाइल से लोग वहां पर मौजूद होंगे. और किसी वक्त मैंने कहा था, शायद जिनकी बाबत हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वहां हों, अगर हम वहां होंगे तो हम उनको देखेंगे और हैरान रह जाएंगे. और शायद जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां होंगे, पॉसिबली वो वहां ना हो. मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन पर गौर करें और देखें कि हमारी खुदा के साथ वफादारी कैसी है और हम किस तौर पर अपने खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं. खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जो हमारे आंखों ने नहीं देखी, ना ही हमारे कानों ने सुनी है, मासवा खुदा के कलाम से जो हम पढ़ते और सुनते हैं. वो अपने मोहब्बत करने वालों के लिए उसने तैयार कर रखी है. उसके लिए शुक्रगुजारी करें और इस जिंदा उम्मीद के लिए जो हमें हासिल है शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि गैर कौमें जो मसीह खुदावंद को नहीं जानती, मसीहा को जान सकें, ताकि मेरे ब्लड रिलेटिव्स भी और वो तमाम जो आपके भी अभी गैर निजात याफ्ता है, वो भी उस मकाम पर हो सके. आए हम दुआ करें. ए खुदावंद, तारीफ करते हैं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है. खुदावंद, फजल बख्शिए कि हम अपनी पाकीज़गी के मयार को कायम रखें और वो जो उम्मीद की हुई चीजें हैं और अनदेखी हैं, खुदावंद, हम उनको ईमान के साथ हासिल कर सकें. शुक्र करते हैं उस मकदस और शहरे यरूशलेम के लिए जो ए बाप आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है. कुर्राए अर्ज पर रहने वाले तमाम गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए दुआ करते हैं. खुदावन, आप अपने खुदाम और खादमाओं के जरिए ख्वाबों और रोयाओं के जरिए उन पर जाहिर हों, ताकि वो तारीकी से निकलकर नूर और उजाले में आ जाएं. आज फिर से मुल्तजी हूं उन तमाम अजीज भाइयों और बहनों के लिए जो अपनी दुआया दरखास्तें रकम कर रहे हैं. खुदावन, आप जानते हैं कि उनकी क्या दुआया दरखास्तें हैं. मिन्नत करता हूं, अपने लोगों की आरजुओं को और ईमान के साथ पेश की गई इन दरखास्तों को कबूल कीजिए और जैसा आपके लोग चाहते हैं, अगर वो आपके जलाल का सबब है तो अपने लोगों के लिए मुहैया कीजिए. खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं. आमीन एंड आमीन. और खुदावंद आप सबको आज इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए. फिर मिलेंगे बशर्ते कि खुदा की मर्जी हुई, और अगर इस दुनिया में नहीं तो आसमान पर तो हम मिलेंगे ही. बहरहाल खुदावन आप सबको ढेरों बरकतों से नवाजें. आमीन एंड आमीन.